Jai Hind everyone, myself Pragati Pandey, your maths teacher, and I'm here with a new video of chapter 5, that is operation of rational numbers. So in the previous video we have already discussed the exercise 5.1. First exercise we have gone through, and also we have gone through the two operations, that is the addition and subtraction. These two operations on rational number we have already completed, and now we are going to start our another exercise 5.2, in which we will go through the questions based on multiplication. That will be our third operation of rational number, that is multiplication. So let's start our exercise. Before starting our exercise, first of all we will see some general things. So in the previous chapter fraction, we have discussed how to multiply the fraction. While multiplying the fraction, हम क्या करते हैं, जब भी हमें फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर की वैल्यू को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो आप एग्जांपल में देखेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6/7 मल्टीप्लाई 7/9. तो हम क्या करेंगे, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स न्यूमरेटर 6 है और 7 है, दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में हम डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे कि 7 और 9 आप देख रहे होंगे, इसको हम एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है. ओके, सो इन दिस वे वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. ओके, और इसकी सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मतलब है, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में दिया गया है और उसको हमने q/p के फॉर्म में कर दिया, मतलब p/q के फॉर्म में था, उसको हमने q/p के फॉर्म में कर दिया, तो हमारा वो रेसिप्रोकल होता है. मतलब अगर कोई फ्रैक्शन है 3/7, उसको हम 7/3 कर दें तो वो हमारा रेसिप्रोकल होता है. ओके, like you can see in the example number 2, write down the reciprocal of. First part is 6/11. You can see here that reciprocal of 6/11 is 11/6. So this is reciprocal. Okay, so we have seen the multiplication, how to do multiplication. In multiplication, what we do, we simply multiply the numerator value with the numerator value and the denominator value with denominator value. Then after we have gone through the reciprocal in which any number which is written in the fractional form, that is p/q, we just convert that into q/p form. Okay, so let's move to the exercise. The first question of exercise 5.2 is, find the reciprocal of each of the following. In this question you can see here, what you have to do, you have to just write the reciprocal of each questions. Here it is written question number 1, that is 18, so its reciprocal will be 1/18. Okay, second one is 16/12, the reciprocal of 16/12 will be 12/16. You can see here third part is -19. So while doing the reciprocal, you know that we will just put 1/19. Okay, 1/19 will be the form. So अगर हम -19, यहाँ पे आप देख रहे हैं -19 लिखा हुआ है, और अगर हम -19 निगेटिव इंटीजर है, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-19 होगा, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. पहली चीज़, डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो नेगेटिव साइन को हम ऊपर पहुंचा देंगे 1 के पास, तो हमारा आंसर हो जाएगा -1/19. ओके, इसी तरह से फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ अप टू 10 पार्ट्स. दिस इज़ योर असाइनमेंट वर्क, यू हैव टू डू. हिंट मैंने आपको दे दिया है और आपको इसको सॉल्व करना है.
Now second one is simplify 6 by 5 divided by minus 3 by 2. Let's see this question. Here you can see the sign of divide is given. When there is the sign of divide, what we will do, let's see by solving this question. Okay, आपका क्वेश्चन ये दिया गया है 6 by 5 डिवाइडेड बाई -3/2. क्या करेंगे हम 6 by 5 को एज इट इज़ लिख लेंगे. डिवाइड की साइन है, डिवाइड का साइन है. फ्रैक्शन में हम डिवाइड ऐसे ही सिंपली नहीं करते हैं, हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं. तो यहाँ पे हमने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाया और जो ये फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 2/3. आपको पता है ये -3 अगर हम यहाँ रखेंगे तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम इसको न्यूमरेटर के पास ही रखते हैं. जब भी कभी हमें डिवाइड करना होता है, मान लीजिए 5/6 डिवाइडेड बाई आपको दिया जा रहा है 15/32. इस तरह से है अगर आपके पास, तो आप 5/6 मल्टीप्लाई 32/15 कर देंगे, मतलब जो सेकेंड नंबर होगा उसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे. उसी तरह से यहाँ हमने किया 6/5 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ है और 3/2 का रेसिप्रोकल हो गया है. ओके, अब हम देखेंगे 3 से आप 6 को काट देंगे, 2 टाइम्स में जाएगा ना. उसके बाद आप देखेंगे फिर कुछ कट रहा है. कभी भी न्यूमरेटर की वैल्यू से नहीं कटेगी. कभी भी जब भी काटना होगा हमें न्यूमरेटर से हम डिनोमिनेटर को ही काटेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कभी नहीं कटेगा. ओके, then we have 2 here and 2 here. 2 2s are 4 and we have the plus sign here and the minus sign here, so it will have negative sign, plus minus minus. यहाँ पे 1 हो गया, 5 1 जा 5. So this is our answer. Okay, now second part of this question, 9/4 divided by 3/4. Let's see this. Our question is 9/4 divided by 3/4. 9/4 डिवाइड की साइन को हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 4/3 हो जाएगा. 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 9 3 बार में कट गया. सो हियर इट इज़ 1 1 1 3 1 जा 3 1 1 जा 1, दैट विल बी 3 आंसर. ओके, सो इन दिस वे you will solve this question. Okay, the rest 2 questions of this question number 2 are assignment work you have to do. Now question number 3, fill in the blanks. The same question is here, you can see that. So it is your assignment work you have to do, and don't forget to ask the doubts. Okay, now moving to question number 4, divide the sum of 32 by 11 and 2 by their difference. कह रहा है क्वेश्चन में कि डिवाइड द सम ऑफ, पहले आप इसका सम करिए, आप इन दोनों को ऐड करिए, उसके बाद इनका डिफरेंस फाइंड करिए, मतलब अंतर फाइंड करिए, और इनका जो जोड़ है मतलब एडिशन है, और इनका जो अंतर है उसको एक दूसरे से डिवाइड करिए. लेट्स सी. सो इस क्वेश्चन में हम पहले इन दोनों का सम फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी उनको हम डिवाइड करेंगे. ओके, हियर इज़ द सॉल्यूशन. सम ऑफ 32/11 एंड 2. 32/11 प्लस 2/1 कुछ नहीं था तो हमने 1 ले लिया. यहाँ पर 32/11 प्लस 2/1 हमने ऐड किया, 11 और 1 का एलसीएम 11 होगा. 11 1 टाइम्स में जाएगा, 32 माइनस 1 से जब हम 11 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा, और 11 2 जा 22. हमारे पास आया 32 प्लस 22/11. हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 54/11 आएगा. ये है सम का वैल्यू. अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है. डिफरेंस के लिए हमने क्या किया, 32/11 एंड 2 दो हमारे पास नंबर्स हैं, इनका हम डिफरेंस फाइंड करेंगे. इनका जो डिफरेंस होगा 32/11 माइनस 2. एलसीएम अगेन
11 होगा। 32 माइनस 22 जब हम घटाएंगे तो 10/11 हमारे पास आएगा। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में कि सम फाइंड करो पहले, फिर डिफरेंस फाइंड करो और फिर इन दोनों को जो आंसर आ रहा है इनको डिवाइड कर दो। डिवाइड क्या करना था, 54/11 जो कि ये वैल्यू है सम की, डिवाइडेड बाई 10/11 जो कि डिफरेंस की वैल्यू है। हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम 54/11 डिवाइड था, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया हमने, तो ये रेसिप्रोकल हो गया, 11/10 हो गया। 11 से 11 कट गया और 54/10 आया। 54/10 को आप या तो 27/5 भी कह सकते हैं, और मैंने इसको यहाँ डेसिमल में कर दिया यानी 5.4। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 इज मल्टीप्लाई। व्हाट यू हैव टू डू, 6/5 मल्टीप्लाई 9/4, जो कटेगा आप काट देंगे, बाकी जो वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगी। ये दिस इज योर असाइनमेंट वर्क, एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to question number 5 your assignment work. That's all for today. Thank you students. We will discuss from question number 6 in the next video. Till then, stay safe, stay healthy.